کشمیر لداخ دیکھ رہے آپ، میں ہوں عامر احسن آپ سبھی کے ساتھ۔ بجٹ سیشن سے قبل صلاح مشورے کا دور جاری ہے اور محکمہ خاص طور پہ محکمہ جاتی میٹنگ کے بعد، یعنی جو انٹرنل میٹنگ ہوتی ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹ میں، اس میٹنگ کے بعد اب ایم ایل ایز کے ساتھ یہ میٹنگ چل رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی صدارت میں یہ میٹنگ چل رہی ہے اور 23 جنوری کو سینٹرل کشمیر کے ارکان اسمبلی سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوگی۔ دوپہر 1 بجے سے 3 بجے تک یہ میٹنگ ہوگی۔ 24 جنوری کو 2 مرحلے میں میٹنگ چلے گی، صبح 10 سے دوپہر 1 بجے تک، اور ساؤتھ کشمیر کے ایم ایل اے سے ملیں گے سی ایم عمر عبداللہ۔ اس کے بعد دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک شمالی کشمیر کے ایم ایل اے سے عمر عبداللہ کی ملاقات ہوگی۔ اگلے ہفتے جموں ڈویژن کے ایم ایل اے کے ساتھ یہ میٹنگ ہونی ہے۔ 30-31 جنوری ڈیٹ فکس کیا گیا ہے۔ بجٹ 2026-27 کو لے کر کے بات چیت ہوگی۔ بتا دیں کہ بجٹ کے لیے اس مرتبہ یہ صبح کافی زیادہ خاص ہے، کیونکہ یہ اسمبلی کا بجٹ سیشن اس وجہ سے بھی خاص ہونے جا رہا ہے کیونکہ سرکار کے پاس اپنا آؤٹ پٹ دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اتنا بڑا جو بجٹ سینکشن کیا گیا تھا سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے، ان میں سے کتنا خرچ ہوا ہے، کتنا خرچ ہونا باقی ہے، کس کو کہاں الاٹ کرنا ہے، کس کو کہاں کس سیکٹر میں زیادہ پیسے لگانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر کے بڑے لیول تک میٹنگ کا سلسلہ چل رہا ہے اور ایم ایل ایز کو ہر ایک علاقے کے حساب سے انہیں اپنے مسائل کو ترجیحی بنیاد پر رکھنے کے بعد جو بجٹ کا ایلوکیشن ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، اور پھر یہ جیسے ہی فائنل ہوگا فوراً ایم ایل ایز کی پھر میٹنگ ہوگی سی ایم عمر عبداللہ کے ساتھ 30 اور 31 کو، دونوں یعنی 30-31 جنوری دونوں دن خاص طور پہ یہ میٹنگ ہوگی۔ اور اس 30 اور 31 جنوری کو میٹنگ کے اندر سی ایم عمر عبداللہ اور ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ میں یہ فائنل طے کیا جائے گا کہ آخر کس ڈپارٹمنٹ میں، کس محکمے میں، کس جگہ پہ کتنا بجٹ دینا ہے یا کتنا بجٹ لگ چکا ہے، یا اوور آل ڈیولپمنٹ کے جو کاریہ تھے وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 2 فروری سے اسمبلی کا بجٹ سیشن شروع ہو جائے گا، پھر یہ ٹائم رہے گا نہیں۔ تو یہ جو 1 سال سے زیادہ کا لمحہ بیتا ہے اس یو ٹی سرکار عمر عبداللہ کی سرکار کے لیے، قریب 1 مہینے معاف کیجیے گا 1 سال 3 مہینے 4 مہینے، تو اس 1 سال اور کئی مہینے کے درمیان کتنے کام ہوئے ہیں سی ایم عمر عبداللہ کی صدارت میں، ان کی لیڈرشپ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے علاقے باقی ہیں، کتنے ڈپارٹمنٹ باقی ہیں جہاں پہ کام ہونے کی ضرورت ہے۔ تو بجٹ سیشن کہ اسمبلی سیشن سے پہلے یہ ساری تیاریاں پہلے ہی سرکار کر لینا چاہتی ہے تاکہ جیسے ہی اسمبلی کا آغاز ہو فوری طور پہ ساری چیزیں پیش کی جا سکے، عوام کو اپوزیشن کو مطمئن کیا جا سکے۔ گراؤنڈ سے عاقب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عاقب، اسمبلی بجٹ سیشن سے پہلے ہی خاص طور پہ سرکار کی تیاریاں دیکھنے کو مل رہی ہے اور سی ایم عمر عبداللہ کی ایم ایل ایز کے ساتھ میٹنگ بھی، کیا کچھ ہے خاص ان تمام تر چیزوں کے بیچ میں؟ بالکل عامر، سب کی نگاہ ہے اب بجٹ سیشن پہ ہے، خاص کر جموں کشمیر کو لے کر جب ہم بات کرتے ہیں تو اب جو ہے 2 فروری سے جو ہے بجٹ سیشن لگنے والا ہے، جس میں ہر ایک شہری کو نظر ہے اس بجٹ سیشن پہ، کیونکہ اب جس طریقے سے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ میٹنگز لے رہے ہیں، چاہے جموں کی بات کریں گے اب یا کشمیر وادی کی بات کریں گے، تو کل بھی ایک میٹنگ ہونے والی ہے جو سینٹرل کشمیر کے جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں، چاہے ہم شری نگر کی بات کرتے ہیں، گاندربل کی بات کرتے ہیں یا بڈگام کی بات کرتے ہیں، ان 3 ڈسٹرکٹس میں جتنے بھی ایم ایل ایز ہیں وہ کل جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ بیٹھک کریں گے شری نگر کے سیکرٹریٹ میں، جو لگ بھگ 2 بجے سے لے کر 6 بجے تک شام دیر تک یہ میٹنگ چل سکتی ہے۔ اور جو ایم ایل ایز ہوتے ہیں وہ اپنے علاقے کے گراؤنڈ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ کہاں پہ کیا دقت ہے، کیونکہ لگاتار جو ایم ایل ایز ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں جاتے ہیں، اپنے گریونسز لکھتے ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ میں کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے یہ ایک ایم ایل اے کو پورا پتہ ہوتا ہے۔ وہ ایم ایل اے جو اپنے اپنے علاقے سے آئیں گے اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ کو ملیں گے، کیونکہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ فائنانس ڈپارٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ سیشن آنے والا، جو بجٹ میں جموں کشمیر کو پیش کرو 26 اور 27 کو لے کر، اس میں ٹرانسپیرنسی ہو اور ہر ایک کو آن بورڈ لیا جائے۔ جس طریقے سے چاہے ایم ایل ایز کی بات کریں گے یا باقی ٹاپ آفیشلز کی بات کریں گے، وہ اس سیشن میں رہیں گے، اس میٹنگ میں رہیں گے
ताकि जितने भी एमएलएज हैं वो अपने अपने इलाके की ग्रीवेंस बताएंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट्स की ग्रीवेंस बताएंगे, अपने अपने महकमे की ग्रीवेंसेस बताएंगे, कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है, कहाँ पे जरूरत है हमें, कहाँ पे ड्रेनेज की दिक्कत है, क्योंकि आए दिन हम भी ये रिपोर्ट चलाते हैं कि ड्रेनेज की काफी ज्यादा दिक्कत है, मैग्नेमाइजेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाई है, या तिब्बी जो फैसिलिटीज है वो कई अस्पताल में नहीं है। हालांकि कैंसर की जब हम बात करते हैं तो कैंसर उरूज पे है जम्मू कश्मीर में। पिछले 5 साल से 70,000 के करीब यहाँ पे लोग कैंसर से मरे हैं। यहाँ पे जो पेट स्कैन है वो खाली एक मशीन है, सिर्फ सौरा में है, और उसके साथ साथ जम्मू में एक पेट स्कैन मशीन है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट्स है तिब्बी माहिरीन के हवाले से वो काफी ज्यादा कम है, और इन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। और उसके बाद परसों यानी कि 24 जनवरी को जो है साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर के जितने भी एमएलएज हैं वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को मिलेंगे, और उसके बाद एक बजट को तश्कील दिया जाएगा। कश्मीर डिवीजन से मान लीजिएगा कि कोई फिगर बताई जाएगी कि ये फिगर जो है कश्मीर को आगे आने वाले वक्त में यानी कि 2026 और 27 में इस बजट में पूरे जम्मू वादी कश्मीर के जितने भी मसलों मसाइल हैं वो हल होंगे। इन सब चीजों पे बात होगी, और उसके बाद जो जम्मू के एमएलएज है उनसे बातचीत चल रही है, और वहां से जितने भी, क्योंकि 28 भाजपा के एमएलएज है और वो अपोजिशन में भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जम्मू कश्मीर में है, और कहा जा रहा है कि जितनी भी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किसी भी राज्य में होगी या सेंटर में होगी उतनी बेहतर गवर्नमेंट यहाँ पे चल सकती है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो एलओपी सुनील शर्मा है वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कैबिनेट है उनको निशाना बनाया, और कहा जा रहा है कि इन्होंने अभी तक काम नहीं किया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने जो मंशूर में वादे किए थे, अभी वो मंशूर जो है जब हम भी उनके पास जाते हैं वो उस पे बात करने के लिए, तो उनका यही जवाब होता है कि 5 साल का अरसा हमें लोगों ने दिया है, और इन 5 साल में जो है हम ये जो भी मंशूर हमने दिया था वो हम मुकम्मल करेंगे। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से जितनी भी तैयारियां हैं सरकार करके रखेगी, क्योंकि बजट सेशन के दौरान ऑब्वियस है कि अपोजिशन इन 1.5 साल का हिसाब मांगेगी, अवाम के सवालात रखेगी और कहीं न कहीं अपना उल्लू भी सीधा करने की कोशिश करेगी। हर वो सियासत जो इस मरतबा इस 1 साल 4 महीने के अंदर हो सकती है इस सरकार के अंदर, उन तमाम तर चीजों को मुमकिन है कि सामने में रखा जाए। इससे पहले सरकार तैयारियां करना चाहती है और ये देखना चाहती है कि ये जो कुछ अब तक उन्होंने किया है या जो कुछ करना है उसमें क्या कुछ उपलब्धियां हो सकती है, और यही वजह है कि ये मीटिंग असेंबली की कार्रवाई शुरू होने से पहले काफी ज्यादा खास है। बने रहिए आकिब हमारे साथ, कुछ अहम खबरों के साथ दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। कटरा मेडिकल के तलबा के लिए एक बड़ी खबर है। नए मेडिक्स कॉलेजों में एडजस्टमेंट के लिए इन तलबा को भेजा जाएगा। 24 जनवरी को BOPEE दफ्तर में ये काउंसलिंग होगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पहले ही जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि JKBOP ने 50 सुपर न्यूमेरी MBBS सीटों के लिए फिजिकल काउंसलिंग का ऐलान कर दिया है, और ये सीटें SMVD यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस काकरियाल कटरा की बात हो रही है। वहाँ के तलबा को जहाँ के कोर्सेज ख़त्म कर दिए गए थे चंद दिनों पहले मुखालिफत के बाद, जम्मू कश्मीर के नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एडजस्ट किया जा सके। नोटिफिकेशन के मुताबिक काउंसलिंग 24 जनवरी को होगी। उम्मीदवारों को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में BOPEE दफ्तर जम्मू कश्मीर जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना होगा, और काउंसलिंग पूरी तरीके से मेरिट कम प्रेफरेंस की बुनियाद पर की जाएगी। और ये सीटें नेशनल मेडिकल कमीशन के अहकामात के तहत बनाई गई है। अनंतनाग, बारामूला, डोडा, हंदवाड़ा, कठुआ, राजौरी और उधमपुर मेडिकल कॉलेज में तकसीम कर दिया जाएगा, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में यहाँ के बच्चे नहीं जाएंगे। BOP ने बताया है कि ये मुंतखब उम्मीदवारों को इत्तला किया गया है, बता दिया गया है। तफसीलात ऑफिशियली वेबसाइट पर मौजूद है। आकिब हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। आकिब, कटरा मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद इन तलबा के लिए दूसरी जगह रसाई हासिल करना या फिर किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में एडजस्टमेंट करना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा और इनके लिए भी, लेकिन एक बड़ा कदम उठाते हुए इस मरतबा देखा जा रहा है कि अब शायद इनका एलोकेशन या फिर अलॉटमेंट बहुत आसान होने वाला है। क्या है इस हवाले से खबर? बिल्कुल आमिर, कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी चली जो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में जो मेडिकल कॉलेज में 50 बच्चों को नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो है उनको मेरिट के आधार पे उनको वहां पे एडमिशन मिला था, और उसके बाद
कई सारी कंट्रोवर्सी उठी और कई सारे ग्रुप्स सेंटर में भी चले गए कि उनको कहा गया कि ये एक आस्था के साथ ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज जुड़ा हुआ है और मुस्लिम बच्चे जो कि 42 के करीब वहां पे मुस्लिम बच्चे हैं उनको वहां पे एडमिशन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद नेशनल मेडिकल काउंसिल ने एलओपी को कैंसिल किया, यानी कि जो लेटर ऑफ परमिशन है उसको कैंसिल किया गया और उसमें यह बताया गया कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज होती है एक मेडिकल कॉलेज की वो यहाँ पे मैसर नहीं है और फिलहाल इस एलओपी को कैंसिल किया जाएगा। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो हमारे बच्चे हैं, अगर मेरे भी यही अल्फाज उनके हैं, अगर मेरे भी बच्चे ये होते तो मैं हरगिज इनको इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने देता, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है इन बच्चों के लिए, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और उसके बाद जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा को एक ऑर्डर निकाला है और उनसे कहा कि जो ये बच्चे हैं इनको नजदीकी मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट किया जाएगा। और उसके बाद लगभग एक हफ्ता गुजर चुका है और एक हफ्ते के बाद अब बाज़ाब्ता तो एक नोटिफिकेशन जारी हुई है और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो 50 बच्चे जो कि श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जिनको दाखिला मिला था, एक नीट क्वालिफाई करने के बाद इनको दाखिला मिला था लेकिन उसको रद्द किया गया, इस कॉलेज को उसकी एलओपी कैंसिल की गई है। अब बोपी की तरफ से, चाहे श्रीनगर की बोपी की बात करेंगे या जम्मू बोपी की बात करेंगे, अब 24 जनवरी को सुबह 10 बजे से 10 बजे एक टाइमिंग है और 11 बजे की टाइमिंग दी गई है। इनको रिपोर्ट करना है दोनों जगह पे, श्रीनगर में भी और जम्मू में भी। और ये जो 50 जो स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स, इनमें इनको डिफरेंट कॉलेज में जो है भर्ती किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने कहा था कि जो इनके नियर बाई मेडिकल कॉलेज होंगे वहां पे इनको भर्ती की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से आज जो नोटिफिकेशन आई है इसके मुताबिक इनको अब मेरिट बेस पे जो है सिलेक्शन होगी और कॉलेज मिलेगा। इसमें बाज़ाब्ता तौर बारामूला में, अनंतनाग में 8 बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, यानी कि अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 8 बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा, बारामूला में 7, डोडा में 7, हंदवारा में 7, कुठवा में भी 7 और रजौरी में 7 और उधमपुर में भी 7 बच्चों को एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि इसका यही मतलब है, जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने जो कहा था कि जो नियर बाई बच्चे हैं, यानी कि अगर कोई श्रीनगर से है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में उसको दाखिला मिलेगा, अगर कोई अनंतनाग से उनको नजदीकी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलेगा, अगर कोई साउथ से है या नॉर्थ से या जम्मू से है उनको उन कॉलेज में दाखिला मिलेगा। लेकिन अब जिस तरीके से नोटिफिकेशन सामने आई है इसके मुताबिक जो है अब बाज़ाब्ता तौर बोपी ये तय करेगी कि कौन बच्चा किस मेडिकल कॉलेज में जाएगा। उमर अब्दुल्ला की बोली एक है लेकिन जो ऑर्डर है वो कुछ और ही बयां करता है। जी आमिर, बड़ी बात यह है कि मुश्किल का सामना हो तो हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत है शर्त साहब, हिम्मत से क्या ना हो। और यही वो हिम्मत है, हौसला है जो इन बच्चों ने बचा करके रखा है, वरना एक कम्युनल माइंड, एक बड़ी धारा ने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम से अलग करने के लिए लगातार कोशिशें की है। कुछ और अहम खबरों की तरफ आते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। जाहिर है कि ये जो बोर्ड ऑफ मेडिकल कॉलेज में प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, इसके जरिए लगातार कोशिशें चल रही है और इन बच्चों को अब अलग अलग जगह पे उनके हिसाब से फिट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो एक डिजास्टर की तरह हम देख रहे थे, अब नहीं हो पाएगा। उधर पुलवामा जिले के बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट अवतार सिंह ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट में यूटी भर के मुख्तलिफ कॉलेजों में एडमिशन प्रोसेस का इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा है कि आला तालीम इदारों में स्टूडेंट के बढ़ते दाखिले की तादाद इलाके में तालीमी मुस्तकबिल के लिए एक मुस्बत पहल है। यानी कि इसको अगर मैं बहुत ही सादा लफ्जों में बोलूं तो आने वाले कल के लिए बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आराम से एडजस्ट कर दिए जाएंगे और सरकार कैपेबल है। जम्मू के लिए अलग अलग राज्य की मांग पर बात करते हुए अवतार सिंह ने कहा कि बीजेपी को इस मांग पर कोई एतराज नहीं है। इस सिलसिले में तमाम पहलुओं पर संजीदगी से गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अवाम की ख्वाहिशात को तरजीह देती रही है। इलाके की हमागीर तरक्की बीजेपी की अव्वलीन तरजीह है। यानी कि जो लोग सोच रहे हैं, लोगों की सोच को सोचा जाएगा, गौर किया जाएगा। अगर लोग चाह रहे हैं दूरी अलग अलग या फिर डाइवर्जन, तो उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लोग नहीं चाह रहे हैं तो नहीं होगा, वगैरह वगैरह। इसी दौरान आज बीजेपी यूनिट पुलवामा की जानिब से एक अहम प्रोग्राम हुआ था और इसी में सदारत की थी अवतार सिंह ने। इस मौके पर पार्टी के नौ मुंतखब कौमी सदस्य हो रही है।
एक खुशी की लहर। भारतीय जनता पार्टी को एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते और देश का एक छोटा सा शहरी होने के नाते मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी मिसाल है। घर में 4 सदस्य होते हैं, घर बड़ा होता है, घर के 4 घर बन जाते हैं, बच्चे बड़े होते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश इतना बड़ा हो चुका है। हाँ, देश की प्रोलिफरेशन होती है क्योंकि हम डेजोलेशन ऑफ पावर्स की बात बोलते हैं। जितना यूनिट छोटा होगा इतना उसको आबियारी मिलेगी। जो हर बारी ये गिले शिकवे रहते हैं, कश्मीर वाले बोलते हैं हमको हमारे साथ सुतेला व्यवहार होता है, जम्मू वाले बोलते हैं, लद्दाख वाले। तो इसलिए देश को इन सारी बात को सामने रख के जो लोगों की इच्छा है, जो लोगों की उमंगें हैं, क्योंकि भारतीय ये अपना जो भारत है ये एक मल्टीलिंग्विस्टिक देश है। अब आते हैं उस खबर की तरफ जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और आने वाले दिनों के लिए एक अहम इम्पैक्ट डालेगा। जम्मू कश्मीर में सेंसस 2027 का पहला मरहला जून में शुरू होगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू की सदारत में जायजा मीटिंग चल रही है। 1 जून से 30 जून तक ये हाउसिंग लिस्टिंग की जाएगी, यानी कि जो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन है उसे मुकम्मल कर लिया जाएगा और मुल्क में पहली बार सेंसस होगा। पूरी तरीके से डिजिटल पेपरलेस डेटा रियल टाइम पोर्टल के लिए जाएंगे और अपलोड कर दिए जाएंगे। 16 मई से लोग सेल्फ एम्यूनरेशन के जरिए ऑनलाइन भर भी सकेंगे अपना नाम, अपनी डिटेल्स। दूसरा मरहला बर्फीले इलाकों में सितंबर, मैदानी इलाकों में फरवरी 2027 में सेंसस शुरू होगा। जम्मू कश्मीर में सेंसस 2027 का पहला मरहला यानी कि हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन 1 जून से 30 जून 2026 तक होगा। अफसरान के मुताबिक ये अमल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक साथ अंजाम दिया जाएगा और मरदमशुमारी यानी कि सेंसस ऑपरेशन के डायरेक्टर अमित शर्मा ने बताया भी है कि टाइमलाइन 20 जनवरी 2026 को यूटी के मरदमशुमारी राब्ता कमेटी के बैठक में तय की गई है, यानी सेंसस कमेटी जो होती है उसके अंदर, जिसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने की। एचएलओ के दौरान सेंसस करने वाले घर घर जाकर मकान, रिहायशी बिल्डिंग्स, बुनियादी सहूलत, वसाइल के मुतालिक तमाम तर जानकारी ली जाएगी और ये मरदमशुमारी यानी सेंसस मुल्क में पहली बार पूरी तरीके से डिजिटल और पेपरलेस होगा। याद कीजिए 2011 का वो टाइम जब सेंसस हो रहा था। इसमें इस वाले में डेटा रियल टाइम पोर्टल पर अपलोड भी किया जाएगा, यानी कि आप उसे चेक भी कर सकते हैं। 16 मई 2026 से लोग सेल्फ अपने आप तरीके से खुद से इन तमाम डेटा को अपलोड कर पाएंगे, ऑनलाइन जानकारी ले सकेंगे और उसके बाद जियो टैग कर वेरीफाई भी कर दिया जाएगा। मरदमशुमारी यानी सेंसस का दूसरा मरहला बर्फीले इलाकों में सितंबर 2026 और मैदानी इलाकों में फरवरी 2027 में होगा। तो फिलहाल मरदमशुमारी यानी सेंसस के हवाले से एक बड़ी खबर अवाम के लिए, और इस मर्तबा कुछ नया होने जा रहा है। आखिर क्या कुछ है इस मर्तबा की मरदमशुमारी में और क्यों इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल आमिर, जिस तरीके से हम 2011 की जब हम बात करते हैं, जो आपने जिक्र की है यहाँ पे कि जब 2011 में सेंसस हुआ था तो पहले सब एक डेटा एक जगह पे कलेक्ट किया जाता था और उसके बाद महीनों भर उसमें अपलोड करने में लग जाते थे। लेकिन अब जिस तरीके से 2027 का सेंसस होने वाला है और 2026 में ही उसकी तैयारी हो रही है, और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे बर्फबारी होती है और कुछ ऐसे इलाके हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया के साथ डिस्कनेक्ट रहते हैं और उनके लिए एक अलग टाइमिंग रखी गई है। अब डिजिटल सेंसस की जब हम बात करते हैं तो हर एक चीज आपको ऑनलाइन मिलेगी। जैसे ही सेंसस मुकम्मल होगा आप ऑन टाइम और विद इन नो टाइम आप अपना डेटा देख सकते हैं। और 15 दिन का टाइम है और 15 जून में गालिबन ये स्टार्ट होगा। और इस डिजिटल सेंसस में क्योंकि कई सारे लोगों की ये मांग है कि यहाँ पे सेंसस होना चाहिए, और एक तरफ से डेमोक्रेसी को ये एक मजबूत करेगा और दूसरी तरफ से कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा नाम सेंसस 2011 में नहीं आया, लेकिन उनको कई सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई सारे डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिलते हैं। जब वो सेंसस में 2011 सेंसस में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था
उनको हर एक डॉक्यूमेंट इजीली बड़ी बात यह है कि 2011 में बहुत सारी चीजें जो आप कह रहे हैं छूट गई थी, वो यकीनन इस मरतबा पूरी होंगी। और जम्मू कश्मीर के लिए, मुल्क भर को छोड़िए, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ये सेंसस होना कितना जरूरी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे सरकार की सारी स्कीमें, रिजर्वेशन पॉलिसीज और इसके अलावा डिफरेंट पॉलिसीज की अगर मैं बात करूं तो वो सारी चीजें सिर्फ इस वजह से टिकी हुई है क्योंकि हर एक के अपने अपने दावे हैं और हमारे पास जो डेटा है वो पुराना डेटा है और वो भी इतना ऑथेंटिक नहीं है जिसे हम साफ तौर पे कह सकें कि हाँ इसकी बुनियाद पे ये करें। क्योंकि 2011 15 साल बीत गए, 15 साल में बहुत सारी चीजें घटी है, बहुत सारी चीजें बढ़ी है और बहुत सारी चीजें अब माइग्रेट कर चुकी हैं। तो इन चीजों के हवाले से जम्मू कश्मीर में इस मरतबा कुछ नया होगा और इसका आउटपुट यानी कि रिजल्ट बहुत खूबसूरत होने जा रहा है। तो इसमें यकीनन आवाम के लिए बहुत भलाई है। शुक्रिया बेहतरीन मालूमात और तमाम तर खबरों के लिए। आकिब, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के साबिक मेंबर जो हाल ही में जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट के बैनर तले मेन स्ट्रीम सियासत में शामिल हुए, उन्होंने सरकारी खासतौर पर मरकजी सरकार से तवज्जो देने की मांग की है। फ्रंट के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर तलत मजीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जो लोग अमन डेवलपमेंट और सुलह सफाई के लिए आगे आए हैं उन्हें सराहना मिलना चाहिए, ना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनका हौसला तोड़ना चाहिए। डॉक्टर मजीद का कहना है कि सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ से अखबारों में एफिडेविट पब्लिक कराने की मांग की जा रही है और ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले मेंबर्स के लिए मायूस कुन वाली खबर है। फिलहाल किसी भी तरह के एफिडेविट की वजह यह होती है कि उससे सरकार को या फिर किसी पर्टिकुलर जमात को वेरिफिकेशन के लिए वो देना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए एक बोझ है। उन्होंने कहा कि ऐसा कदम यूटी जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। बहैसियती जेडीएफ, ये सबको पता है कि जेडीएफ का वजूद क्या है या जेडीएफ कहाँ से पैदा हुई और 2019 के बाद जो जमात पे जो बैन हुई लगी, उसके बाद जमात कोई एक्टिविटी नहीं कर रही है, ये सबको पता है और हम भी इस चीज़ पर कायल है और हम कानून की पासदारी करना जानते हैं। हमें पता है कि कानून की अहमियत क्या होती है, लॉ ऑफ द लैंड। हम जिस मुल्क के शहरी हैं उस मुल्क के जो कानून है वो कुछ ज़वाबित हैं, हम उनके तहत काम कर रहे हैं। जितने भी लोग जेडीएफ से जुड़े हैं उनकी प्रोफाइलिंग में हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर अगर पुलिस जो है वो इनफरादी तौर पर किसी की प्रोफाइलिंग कर रहा है, ठीक बात है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, हम उस पर कोऑपरेट करेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो एफिडेविट लिख के एफिडेविट दे के कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर लिखा है कि आपको साबित करना है, आपको एफिडेविट दिखना है, ये तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। बारामूला से नारबल तक 4 लेन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट तेजी से मुकम्मल होने का काम चल रहा है। इससे नॉर्थ कश्मीर की रोड कनेक्टिविटी के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर नवेद बशीर ने बताया कि पिछले कुछ बरसों में जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से सड़क कनेक्टिविटी में काफ़ी बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि नारबल बारामूला 4 लेन प्रोजेक्ट में हाई क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सड़क मजबूत हो, महफूज हो। नवेद बशीर के मुताबिक अब तक करीब 97% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि बाकी बचा हुआ हिस्सा आने वाले चंद महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रोजेक्ट की पूरी तरीके से कंप्लीट होने के बाद ट्रैफिक मूवमेंट आसान होगी और इलाके की कनेक्टिविटी को बेहतर फायदा मिलेगा। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करूं, जो श्रीनगर नारबल से अभी इस वक्त बन रहा है, इस पे काम अभी जारी है और हाईवे स्ट्रेच जो है उस पे 97% इस पे काम मुकम्मल हो गया है। जो इसमें ब्रिजेस बनने थे, मेजर ब्रिजेस कुछ 4-5 बनने थे, माइनर ब्रिजेस बनने थे, कल्वर्टर्स, ड्रेन, क्रेश बैरियर था, तो ऑलमोस्ट वो कंप्लीट है। 97% हमारा इस वक्त जो हाईवे स्ट्रेच है वो कंप्लीट है। तो ऑलमोस्ट विद इन 2-3 मंथ जो भी पेंडिंग वर्क है, जिसमें थोड़ा एलए इशू था 2-3 जगहों पे, तो वो भी हम कोशिश करेंगे 2-3 महीनों में कंप्लीट करने की। जो नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल प्रोजेक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे आया है। इसमें जो अथॉरिटी है, बीकन अथॉरिटी है, तो बहुत ही वाइटल प्रोजेक्ट है इस रीजन के लिए, नॉर्थ कश्मीर रीजन के लिए, क्योंकि इस पे 3 डिस्ट्रिक्ट्स इस रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, बांडीपोरा, बारामूला, उरी। तो उस लिहाज से बहुत ही कनेक्टिविटी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से बहुत ही अहम प्रोजेक्ट था ये, तो जिसपे ऑलमोस्ट काम अभी कंप्लीट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगेगा।
उधर कुलगाम की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस स्टेशन कुलगाम में दर्ज एक मामले में 3 मुलजिमीन को मुजरिम करार दिया है, यानी कि केस साबित हुआ। यह केस भारतीय न्याय संहिता की धारा 355 के तहत दर्ज किया गया था। यूटी जम्मू कश्मीर की तरफ से यह मामला पुलिस स्टेशन कुलगाम के जरिए अदालत में पेश किया गया, जबकि सरकारी वकील सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स सैयद नदीम हुसैन ने की थी और मुलजिम बिलाल अहमद अहंगर निवासी टेली नौपुरा, मुबारक अहमद डार और आरिफ अहमद गनी दोनों निवासी कुलगाम के हैं। इन्हें अदालत में पेश किया गया, इल्ज़ाम कबूल किया गया और उसके बाद इनके ऊपर जुर्म साबित हुआ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, में दीजिए इजाजत। देखते रहिए ज़ी जम्मू कश्मीर लद्दाख।